I hope that in the next period you all will be having your books along with you. I know that today maximum of you are not having, but still try to avail that in the till next period. Our first topic is communication skills, right? Means the skills, the quality, the capability which you people need while talking with each other. So the first concept arises that what is communication? Communication is what which we all people do generally. हम सभी करते हैं. क्लास में टीचर नहीं हो, मे बी टीचर इज लेट फॉर 5 minutes, then what happens, you keep on communicating with your friend. तो that is communication, जिसको आप सिंपल में कहते हैं बातें करना, right? Then but if the definition is asked or for 1 marks in your exam it comes, then what you will answer? You will answer that communication is a process, right? Or it's a way through which you share your feelings, your ideas, your opinions, your thoughts with your friends or with any other person, right? The way of sharing your feelings, ideas, thoughts, whatever you want to share with other people, that is communication. Same thing I have written here, that communication, it's a process which involves sharing of information, your opinion, your ideas and beliefs between two or more people. Here you must concentrate that it's written two or more people, means for communication minimum two people you need, right? कम से कम दो जने जरूरी हैं. ऐसा नहीं मैं इस रूम में अकेली बैठे बातें करती रहूं. That's not communication, right? For communicating कम से कम दो जने. आप क्लास में भी किसी दूसरे अपने फ्रेंड से बात करते हैं तभी that is communication. Otherwise that if a single person is talking, that's not communication. So here it's written that two or more person through a continuous activity, if speaking or listening and understanding, right? Communication ऐसे भी नहीं है that I keep on speaking and you people are not getting anything here. आपको यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है. So that is not communication. Whatever the message you are giving, that message is received by you people, by the other person to whom you are communicating. तब वो communication है, right? So that is communication. There are three methods of communication. First is verbal, second is non-verbal, third is visual. One by one, we'll try to discuss each and every concept. The first one is verbal. अब नाम पे ध्यान देंगे. Verbal. Verbal means words. अगर सेंस पे जाएं, where we include words. Right now, take my example. I am speaking, I am using words. राइट नाउ मैं आपको शो कर रही हूँ रिटन कम्युनिकेशन, बट बोल रही हूँ ओरल कम्युनिकेशन, राइट? बट इन बोथ वे आई एम यूजिंग वर्ड्स. रिटन में भी वर्ड्स दिख रहे हैं, यू कैन सी द वर्ड्स ऑन द स्क्रीन एंड यू कैन हियर द वर्ड्स एज माई वॉइस, राइट? तो दे ऑल आर verbal communication, right? Where we use words in the communication, right? Most of the communication, ज्यादातर हम बातें जो है communication में जो है that we used to do in verbal communication, right? Here again it is of two types, oral and written. मैंने दोनों का example दिया, which you are seeing in your screen. At your screen जो भी मैंने आपको पीपीटी शेयर कर रही हूँ, that is the written communication, and whatever you can hear from your ears, means for example my voice, that is oral communication, right? दोनों के example दे दिए मैंने. Next is जो सेकेंड मेथड हमने दिखाया था, that is नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब वर्बल मैंने कहा मीन्स वेयर वी आर यूजिंग वर्ड्स, बट नॉन वर्बल उसका उल्टा, वेयर वी आर नॉट यूजिंग व्हाट वर्ड्स एट ऑल. फिर अगर वर्ड्स नहीं यूज कर रहे फिर बातें कैसे होंगी भाई, शेयरिंग कैसे होगी? It means here no oral, no written communication is there. Here the communication is done with the help of body movement, facial expressions, symbols, images, right? Suppose in class I have given an example. A student asked me, ma'am, can I go for water? So I'll say, तो मैंने कोई वर्ड तो बोला नहीं. Can you see me? Can you see me, बच्चे? My camera No, is ma'am. off.
ये my camera is on, you can check it out. In my other device I am able to see me. Yes, ma'am. हाँ जी. Means if anybody asks me that ma'am can I go for water, तो I'll just nod my head कि नहीं, मुंह से नहीं बोलूंगी, सिर्फ गर्दन हिलाऊंगी. तो it means the student will automatically understand that ma'am is denying. So that is non-verbal communication, right? तो in non-verbal communication, body movements means आप फिंगर से मना कर सकते हैं, facial expressions can tell, any symbol, any images you can show. So there are so many methods of non-verbal communication where with our facial expression, with our body movements, we can do the non-verbal communication. कई बार ऐसा होता है क्लास में टीचर इज टीचिंग एंड स्टिल इशारों से आप लोग बातें कर रहे होते हैं, है ना? समटाइम्स इट हैपेंस. तो दैट इज व्हाट? दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इशारों में बातें हो रही होती हैं. वी हैव सीन सो मेनी टाइम्स थ्रू आई कॉन्टैक्ट्स, थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, है ना, थ्रू आईज ब्लिंकिंग. आप लोग कई बार इशारों में बातें करते हैं ना, तो दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट? नेक्स्ट इज थर्ड मेथड जो कम्युनिकेशन का वी हैव जस्ट seen, that is visual communication. Now whatever you are able to see on your screen, abhi maine kaha this is written communication, but that is also a visual communication, right? You can also see the images, the written messages available on the screen, and along with the written you can hear my voice. So that is a visual communication also, the communication which can be seen. साइंस, चार्ट्स, पोस्टर्स, ग्राफिक, डायग्राम्स. अब राइट नाउ आपको स्क्रीन पे मैं कुछ इमेजेस भी दिखा रही हूँ साथ साथ. तो दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन. मोस्ट इफेक्टिव वे एज द ह्यूमन माइंड प्रोसेसेस इमेजेस वेरी फास्ट. मींस आपकी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशंस में से विजुअल इज द फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन. कैसे? अब एक एग्जांपल लेते हैं. मैं कोई पीपीटी नहीं दिखाऊं आपको, नथिंग इज अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन, और मैं सिर्फ भाषण देती जाऊं, कीप ऑन स्पीकिंग, कीप ऑन स्पीकिंग. वुड इट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू पीपल? एनीवन कैन रिप्लाई? No, ma'am. No. No, ma'am. It will become really boring for you people. But if something is available on your screen, you can side by side see the screen, and along with that you can hear the voice. So that becomes more interesting and more grasping. अगर आप वाकई में पढ़ने के लिए बैठे हैं and you are an active listener, ध्यान भी दे रहे हैं, आवाज भी सुन रहे हैं और साथ साथ स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, then that will be a wonderful communication, most effective, जो आपके वाकई में माइंड में जाएगी, राइट? नेक्स्ट वन इज I think all the three methods we have discussed. क्या क्या डिस्कस किया हमने? We have discussed verbal communication, non-verbal communication, and third we have discussed visual communication. Right? These three methods are there. तीनों आपको पता होने चाहिए. Right? Next is communication cycle. अब what is communication cycle? Communication तो हमने पढ़ लिया. अब cycle क्या है भाई? In communication cycle, what happens? A circle is formed. Circle means what is a communication cycle? It means starting में I have told you that minimum 2 people we need for communicating, right? एक sender और एक receiver. अभी हमारी ही communication का example लें तो I am the sender and you people are the receiver, right? I am sending the message. पहले मैं मैसेज तैयार कर रही हूँ अपने माइंड में कि आपको क्या बोलूं, क्या मैसेज दूं, क्या वर्ड्स यूज करूं. दैट इज एनकोडिंग. ठीक है? मैसेज बनाना इज एनकोडिंग. अब मैंने मैसेज भेजा, मैं वर्ड्स भेज रही हूँ, थ्रू नेटवर्क इट्स गोइंग टू यू, है ना? किसी नेटवर्क के थ्रू आपके पास जा रहा है. अब नेटवर्क में मेरे वर्ड्स तो ट्रेवल नहीं कर रहे, उनको कोई कार या जीप लेके तो नहीं जा रही, नेटवर्क में नहीं जा रही ना. नेटवर्क में क्या ट्रेवल करता है? सिग्नल, है ना? सिग्नल्स ही ट्रेवल करते हैं ना नेटवर्क में. जिस नेटवर्क के थ्रू मेरी वॉइस आप तक जा रही है, देयर सिग्नल्स आर यूज्ड, मेरे वर्ड्स नहीं जाएंगे. तो ये नेटवर्क क्या कर रहा है? इट इज कन्वर्टिंग माई वर्ड्स इनटू सिग्नल्स. तो ये हो गई एनकोडिंग, मेरे मैसेज को ट्रेवल करने के लायक बनाना. दैट इज एनकोडिंग,
राइट। और ये किसी मीडियम के थ्रू जा रहा है, नेटवर्क से जा रहा है। नेटवर्क इज अ मीडियम। अभी हम क्योंकि इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो नेटवर्क इज अ मीडियम फॉर आवर कम्युनिकेशन। तो नेटवर्क आपके घर के नेटवर्क तक पहुंचा, ठीक है। अब जो सिग्नल जा रहे हैं, सिग्नल तो आप पढ़ नहीं सकते, राइट, नहीं पढ़ सकते। आप तो वर्ड में ही पढ़ पाएंगे, मेरी मैसेज मेरी आवाज भी वर्ड्स में ही समझ पाएंगे। सिग्नल पढ़ना तो हम लोगों को आता ही नहीं। तब क्या होगा, यही नेटवर्क जो सिग्नल नेटवर्क के थ्रू आपके घर तक पहुंचे हैं, वापस उन सिग्नल्स को साउंड में या वर्ड्स में कन्वर्ट करके आपको देगा। दैट इज डी कोडिंग। सेंडर के पार्ट पे एनकोडिंग हुई और रिसीवर के पार्ट पे डीकोडिंग हुई, ठीक है। और फिर लास्ट में रिसीवर को मैसेज मिला। एक प्रॉपर साइकिल है। और लास्ट में जब रिसीवर को मैसेज मिल गया, देन रिसीवर विल गिव द फीडबैक। भाई कम्युनिकेशन अच्छी थी, बुरी थी, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या बहुत अच्छा था, किस चीज को वी कैन अप्लाई अनदर मेथड। तो ऑल दैट इज फीडबैक। तो दिस ऑल इज कम्युनिकेशन साइकिल। मैं एक डायग्राम से आपको दिखाती हूँ। लुक है, ये सेंडर, यहाँ सेंडर है, दिस इज मी, और यहाँ पर आप हैं, ठीक है। मेरे से मैसेज आपके पास जाएगा। कैसे? मैंने मैसेज दिया, यहाँ से मैसेज यहाँ पर एनकोड हुआ। एनकोड मीन्स द माई वर्ड्स या मेरी साउंड या मेरी पीपीटी, दीज वर कन्वर्टेड इनटू सिग्नल्स, ताकि ये ट्रेवल होके आप तक पहुंच जाए, ठीक है। दैट मेथड इज कॉल्ड एनकोडिंग, राइट। फिर ये मैसेज चलना शुरू हुआ किसी नेटवर्क के थ्रू, चैनल के थ्रू। अगर हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो हवा मीडियम हो जाएगी, एयर के थ्रू हमारी वॉइस आपस में जाएगी अगर हम आमने सामने बैठे होते हैं। राइट नाउ वी आर एट आवर होम्स और इंटरनेट के थ्रू हम बात कर रहे हैं, तो नेटवर्क विल बी द चैनल, ओके। फिर उसके बाद क्या होता है, मैसेज आपके घर तक पहुंचा, लेकिन अभी मैसेज सिग्नल्स की फॉर्म में है। अब वापस मैसेज फ्रॉम सिग्नल्स फॉर्म वापस साउंड में और या मैसेज की फॉर्म में आपके पास पहुंचेगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे चला था वैसा ही यहाँ पर वापस कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन लास्ट में आपको मिलेगा और आप क्या करेंगे, एक फीडबैक सेंडर को देंगे, राइट। दिस इज कम्युनिकेशन साइकिल, क्लियर। नेक्स्ट इज फीडबैक। अभी मैंने फीडबैक की बात की थी। क्या होता है, इट्स द लास्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने मैसेज दिया, आपने लिया, फिर आप उस मैसेज का फीडबैक देते हैं, दैट इज द फीडबैक। अब फीडबैक एक्चुअल में अगर कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक, तो फीडबैक इज अ रिस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ रिसीवर टू द सेंडर। सपोज मेरी जो भी मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ, जो भी मैं आपसे बातें कर रही हूँ, इट विल बी अ रिस्पॉन्स टू मी कि अच्छा पढ़ा रहे हैं, बुरा पढ़ा रहे हैं, साउंड कम है, दिखाई नहीं दे रहा, आवाज नहीं आ रही, ऑल दैट विल बी द फीडबैक फॉर द कम्युनिकेशन गोइंग ऑन। तो फीडबैक सिंपल सी भाषा में व्हाट वी कैन से, इट्स अ रिस्पॉन्स और इट्स अ रिएक्शन टू द रिसीवर फॉर सेंडर आफ्टर कंप्लीटिंग द मैसेज, आफ्टर कंप्लीटिंग द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होने के बाद ये रिस्पॉन्स है या रिएक्शन है, किसके लिए, सेंडर के लिए। नाउ दिस फीडबैक कैन बी ऑफ टू टाइप्स। आई शेयर दिस पीपीटी विद यू, आप आराम से पढ़ लेना, फिलहाल मेरी बातों पे ध्यान दें और जो मैं दिखा रही हूँ साथ साथ देखें, राइट। नाउ फीडबैक कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पॉजिटिव फीडबैक व्हाट विल बी दैट, दोनों ही फीडबैक फॉर सेंडर, अभी मैं अपने आप को सेंडर मान रही हूँ, फॉर सेंडर बोथ द फीडबैक्स आर बेनिफिशियल, दोनों में ही फायदा है। कैसे, सपोज फीडबैक इज गुड, इज पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव या गुड एक ही बात है। अगर फीडबैक पॉजिटिव है, इट मीन्स भाई अच्छा पढ़ाया, आवाज भी ठीक थी, सब कुछ ठीक था, तो इट विल इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द सेंडर, जिसने मैसेज दिया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड इफ इट इज नेगेटिव, सपोज फीडबैक इज नेगेटिव, भाई ये कमी थी, ये कमी थी, ये कमी थी, देन व्हाट विल हैपन, सेंडर विल ट्राई टू इंप्रूव इन द नेक्स्ट मैसेज, नेक्स्ट कम्युनिकेशन। तो उसमें भी तो फायदा हुआ ना, सेंडर की इंप्रूवमेंट हुई, राइट। तो फीडबैक इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इन बोथ द केसेस इट इज बेनिफिशियल फॉर द सेंडर। वही चीजें जो मैंने बताई यहाँ पर लिखी हैं, देखो इट्स क्या इंपॉर्टेंस है फीडबैक की, इट रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ एक्टिव कम्युनिकेशन। जब तक आप मुझे कमी नहीं बताएंगे अगली बार वो इंप्रूव कैसे होगी, राइट। तो दिस इज एक्टिव कम्युनिकेशन।
आफ्टर दैट इट इज इफेक्टिव ओनली इफ इट इज हर्ड. अगर मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ एंड यू आर नॉट लिसनिंग, तो आप फीडबैक कैसे देंगे? इज इट पॉसिबल? नहीं ना. तो फीडबैक हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी until you are a active listener. जब तक आप ध्यान से सुनेंगे नहीं, you can't answer me. It determines the way forward, means कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हैं, फीडबैक ही बताता है आपको कि अच्छा किया या बुरा किया. Helps the people to get on track, means if there is any drawback in sender's communication, तो उसे ठीक करने में हेल्प करता है फीडबैक. It guides to know how you should do. Sorry. It enhances the confidence. It basis of problem solving. Effective listening is there. It motivates and it improve the performance. ये सारी चीजें मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव में डिस्कस की हैं, राइट? तो all in all, feedback is what? It's the response or reaction of receiver. For the sender, it is of two types, positive and negative, and in both cases it is beneficial for the sender, right? अगर negative है तो it will help the sender to improve for the next future communication, and if it is positive तो it will increase the confidence of the sender, right? Now let me know till here if anybody is having any query. कहीं ऐसा ना हो मैं आगे आगे चलती रहूं और आपकी क्वेरीज इकट्ठी हों. नो मैम. नो. जिसके क्वेरी हो स्पेशली वो अनम्यूट करके मुझे बताए, अदरवाइज आई मूव. चलिए, नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन बैरियर्स. अभी हमने कम्युनिकेशन पढ़ा, फीडबैक पढ़ा, कम्युनिकेशन साइकिल पढ़ा. अब बैरियर. व्हाट इज बैरियर? बैरियर इज समथिंग, हम रोड पे जाते हैं, आजकल कोरोना की वजह से रोड पे आपने देखा हो बहुत सारे वो जिसको हिंदी में अवरोधक बोलते हैं, ऑब्स्टिकल्स बोलते हैं. ट्रैफिक पुलिस थोड़े थोड़े रोड बंद करने के लिए कुछ लगा देती है ना, प्लास्टिक के या सीमेंटेड ब्लॉक्स, तो उसे हम बोलते हैं बैरियर्स. यस मैम. हाँ जी. तो दैट इज बैरियर, राइट? कम्युनिकेशन में बैरियर मीन्स जो कम्युनिकेशन को रोकने के लिए बनाए जाए, विच इज एन ऑब्स्टेकल इन कम्युनिकेशन. जो आपकी और मेरी बात करने में जो प्रॉब्लम हो, दैट विल बी अ बैरियर, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अभी या तो मेरा नेट चला जाए या आपका नेट चला जाए, तो वुड इट बी पॉसिबल टू कम्युनिकेट? नहीं. तो दैट विल बी अ बैरियर. तो बैरियर कैन बी ऑफ एनी टाइप. अब आपके साइड में डीजे बज रहा हो या मेरे साइड में डीजे बज रहा हो, या तो आप नहीं सुन पाएंगे या मैं बोल ही नहीं पाऊंगी या मेरी आवाज आप तक नहीं जाएगी. तो दैट इज अ बैरियर. सपोज माई हेल्थ इज नॉट ओके, या मेरा गला खराब है, मैं बोल नहीं पाऊं, तब भी हमारी आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, राइट? फाइन. तो देयर आर मेनी बैरियर्स इन कम्युनिकेशन. इन दिस डायग्राम यू कैन ऑल्सो सी, मैंने छोटा छोटा दिखाया हुआ है, मैं अभी पढ़ूंगी भी. It's now let's know what is communication barrier. It's anything. मैंने बोला कुछ भी हो सकता है बैरियर भाई. हम बीमार हैं, या आसपास का माहौल ठीक नहीं है, या इंटरनेट नहीं है, या मेरे पास फोन अवेलेबल नहीं है, फोन है तो लीड नहीं है, साइड में डीजे बज रहा है, तो एनीथिंग कैन बी देयर, राइट? लाइट नहीं है घर में, फोन रिचार्ज नहीं हुआ, या मेरे फोन का चार्ज खत्म हो गया नेट का, तो एनीथिंग कैन बी देयर. इसलिए यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया एनीथिंग. इट इज एनीथिंग that prevent us from receiving and understanding messages. मीन्स आप तक मेरा मैसेज पहुंचा ही नहीं, पहुंचेगा ही नहीं तो आप समझोगे ही नहीं, समझोगे नहीं, इट मीन्स कम्युनिकेशन ही नहीं हुई. ठीक है? तो बैरियर्स हुए ना. तो हमारे थॉट्स, हमारी इंफॉर्मेशन या जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो आप तक पहुंचा ही नहीं, तो दैट इज अ कम्युनिकेशन बैरियर. अब यहाँ देखो बहुत सारे हैं. फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड. मैं ये थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी, नेक्स्ट स्लाइड में हमारी बुक में जो है मैं उसके अकॉर्डिंग जाऊंगी. ठीक है? फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसाइज्ड. कुछ बच्चों में डर होता है, ओए ओए मेरी मैडम गलती बता देगी या बाकी बच्चे मुझ पे हंसेंगे, उस वजह से वो जवाब नहीं देते, तो दैट इज अ बैरियर इन देयर कम्युनिकेशन. ठीक है? फिर आ गया जेंडर. कुछ आजकल बहुत कम है ये चीज जेंडर वाली. कुछ बहुत बैकवर्ड गांव हैं जहां पर गर्ल्स को सारी लिबर्टी नहीं है, बॉयज को है, तो वहां गर्ल्स को कम्युनिकेशन बैरियर, उनके लिए जेंडर हो गया. ठीक है? जैसे हम मूवीज में देखते हैं, पुरानी मूवीज का एग्जांपल ले लो. अगर कोई भी, आजकल वैसे है नहीं ऐसी जगह कोई भी जहां जेंडर बाइजनेस हो, लेकिन पुरानी मूवीज का एग्जांपल लें, राइट? देन फिजिकल बैरियर. जैसे मैंने कहा, अगर सपोज मेरी बहुत तबीयत खराब हो या मेरे बहुत हेडेक हो,
तो आई विल नॉट बी एबल टू कन्वे द मैसेज। या आपके सर में दर्द हो, आप भी मेरा मैसेज ढंग से समझ नहीं पाएंगे, तो दैट इज फिजिकल बैरियर। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, सपोज मेरी ईमेल आईडी हैक हो जाए या मैं अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड ही भूल जाऊं, तो आई नॉट बी एबल टू कनेक्ट विद मीट विद यू, राइट। तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, मीन्स कोई ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर कोई प्रॉब्लम हो जाना। देन पर्सनल, पर्सनल में आपका हेल्थ इश्यू भी आ सकता है, आपके फोन का पर्सनल रिचार्ज नहीं है, नेट का रिचार्ज नहीं है, तो ये आपका पर्सनल इश्यू है ना, तो दैट इज पर्सनल बैरियर। देन एम्बिग्यूटी ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, सपोज मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, थोड़ी नहीं बहुत कमजोर है, तो आई एम नॉट एबल टू कन्वे माई मैसेज इन इंग्लिश टू यू। और बहुत सारे बच्चों को हिंदी नहीं आती सपोज, या बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश नहीं आती और मुझे हिंदी, मैं हिंदी में नहीं बोलूं, तो दैट इज अ एम्बिग्यूटी ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, मीन्स वर्ड्स नहीं है यूज करने के लिए, कम्युनिकेशन कैसे मैसेज दें, द लिमिट ऑफ वर्ड्स आर देयर। देन इंडिविजुअल लिंग्विस्टिक एबिलिटी, मीन्स लैंग्वेज इश्यू। आप किसी को याद हो, मैंने क्लास में केरला के स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया था। सपोज एक स्टूडेंट केरला से हमारे स्कूल में ट्रांसफर हुआ, टिल नाउ ही हैज रेड देयर, उसे या तो साउथ इंडियन लैंग्वेज आती है, राइट, या फिर इंग्लिश आती है, हिंदी तो बिल्कुल नहीं आती। तो इन द क्लास द स्टूडेंट, इंग्लिश भी उसे थोड़ी थोड़ी आती है, ही इज एक्सपर्ट इन साउथ इंडियन लैंग्वेज। इन द क्लास सपोज आई कन्वे द मैसेज इन प्रॉपर इंग्लिश, और उसे थोड़ी बहुत 1 या 2% समझ आती है, तो वुड ही बी एबल टू गेट माई मैसेज? नो, बिकॉज उसे तो साउथ इंडियन, 13-14 साल तक उसने साउथ इंडियन लैंग्वेज पढ़ी है, बोली है, सुनी है, तो हाउ ही विल बी एक्सपर्ट, गेट एक्सपर्ट इन 1 or 2 days इन अदर लैंग्वेज? तो दैट इज अ लिंग्विस्टिक बैरियर, राइट। देन साइकोलॉजिकल बैरियर, सबसे अच्छा ये बैरियर का एग्जाम्पल एग्जाम में अगर पूछे तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में सॉरी आपकी क्लास में मैंने कुछ क्लासेस में दिया था एग्जाम्पल, मैं सेम एग्जाम्पल आई विल रिपीट हियर। सपोज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, जिसे कभी भी डांट नहीं पड़ती, बहुत सिंसियर है, डांटते ही बच्चा रोने लग जाता है, इतना सॉफ्ट है वो बच्चा, मीन्स कभी गलती नहीं करता तो डांट भी नहीं पड़ती, राइट, करता या करती, गर्ल, इट मे बी अ गर्ल, राइट। देन व्हाट हैपेंस, बाय चांस उस दिन उस बच्चे से गलती हो गई छोटी सी, एंड द टीचर इन द क्लास स्कोल्डेड हिम और हर, डांट पड़ गई बच्चे को, डांट पड़ते ही पीरियड ऑफ हो गया, द बेल रिंग, right, then immediately the next teacher came and start teaching, बट उस बच्चे के साथ क्या हो रहा है, द टीचर को पता ही नहीं है, टीचर को अभी तक भाई इस बच्चे को डांट पड़ी है, वो इमोशनल है, ही इज क्राइंग, बाहर से आंसू नहीं आ रहे, स्टिल अंदर से ही इज डिस्टर्ब, ही इज मेंटली डिस्टर्ब। भाई मुझे कुछ बच्चे होते हैं ना, जरा सा डांट पड़ते दे गॉट वेरी इमोशनल, और वो पढ़ने पे कंसंट्रेशन कर ही नहीं पाएंगे। ये वो एग्जांपल है साइकोलॉजिकल बैरियर, उस बच्चे का माइंड फिलहाल उस मैडम की डांट में ही है, मेरी गलती कैसे हुई, मुझे डांट पड़ गई, वो इमोशनल है, डिस्टर्ब्ड है, माइंड अपसेट है, तो दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर, राइट। देन बाय पासिंग, कम्युनिकेशन बैरियर, जो हम क्या करते हैं, सपोज नीचे से कोई मैसेज या बाहर से किसी ने कोई मैसेज दिया कि बेटा मम्मी को ये बोलो, अंदर जाके आप मम्मी को कुछ बताते हैं, वो मैसेज सेम टू सेम इट इज नॉट कन्वेड, सेम टू सेम कन्वे नहीं होता कई बार, तो दैट इज बाय पासिंग, सेम कम्युनिकेशन नहीं पहुंची, मींस अ बैरियर इज देयर। बैरियर कहां से आया, बाय पासिंग, एक बंदे का मैसेज दूसरे को पहुंचा, दूसरे ने तीसरे, मूवीज में देख रहे हैं ना, स्पेशली कई बार होता है एक मैसेज सास ने बहू को, बहू ने किसी और को, किसी और ने किसी और को, तो लाइक दैट इट हैपेंस, और लास्ट तक जाते जाते द मैसेज कंप्लीटली चेंज्ड, तो ये वो कॉन्सेप्ट है बाय पासिंग। नेक्स्ट इज कल्चरल, राइट, कल्चरल बैरियर कौन सा होगा, कोई एग्जांपल देगा मुझे, कल्चरल बैरियर? अभी जो मैंने केरला वाला एग्जांपल दिया, that can also be included in cultural barrier, right। कल्चरल बैरियर में भी यही है, उसे केरला का कल्चर पता है, हाउ दे ग्रीट द टीचर, कैसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं वो लोग। अब हम लोग का अलग पैटर्न है गुड मॉर्निंग करने का, वहां पर अलग पैटर्न होगा, है ना, यहाँ पर विश करने का अलग तरीका है, यहाँ पे ग्रीट करने का अलग मेथड है, तो दैट ऑल इंक्लूड्स कल्चरल बैरियर, ठीक है। वहां की फूड हैबिट्स अलग है, यहाँ की फूड हैबिट्स अलग है, फाइन, तो दे ऑल आर कम्युनिकेशन
बैरियर्स, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। ये सारे मैं एक एक करके डिस्कस कर चुकी हूँ। मैकेनिकल बैरियर वहां पर फिगर में नहीं था, लेकिन मैकेनिकल बैरियर का बेस्ट एग्जांपल मैंने इंटरनेट का दिया। सपोज आई एम नॉट एबल टू गेट द इंटरनेट, या फिर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं हो, तो दैट विल बी अ मैकेनिकल बैरियर।